Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach and the online education session organized by the Noblehood School. Student, as you know, in our previous two lectures and our previous two part of this chapter, chapter number 9, Force and Laws of Motion, we have discussed about the cause of motion, which is force, and the effect of forces. After that, in part 2, we have discussed about the two types of forces. First is a balanced force, which will not cause any type of motion, and the second type of force, which is an unbalanced force, which is a prime driving factor to cause the motion. And if we trying to conclude previous session, then it only tells us that unbalanced force is the main reason for the motion. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए we need one unbalanced force. If the forces are balanced, then we cannot do anything because at that time the body is at rest because of the two balanced equal and opposite forces. But when the individual forces are unequal, at that time the force which is rises is unbalanced force, which will cause the motion. Now, in today's lecture, we are going to start the second section of this chapter, Laws of Motion, in which we will discuss first about the first law of motion. Basically, Newton gives the theory or the laws of motion. There are primarily three laws of motion given by the Sir Isaac Newton, which is the father of this laws of motion, or which who was considered as a father of physics. So let us now talk about the first law of motion. So according to the first law of motion, let us first understand the statement of this law of motion. An object remains at in a state of rest or in a uniform motion in a straight line until or unless any external unbalanced force acts on it. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ता जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसे कहा गया गति का प्रथम नियम. Now, let us talk about the second subtopic of this law of motion, inertia. Now, this word might be new to all of you. What is the meaning of inertia? First of all, we will let us understand this word. The ability or the inherent property of any body, कोई भी बॉडी हो और उसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. यानी कि बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जो बॉडी के स्टेट को, अगर रेस्ट है या तो मोशन में है, दोनों में से किसी में भी है,
तो उसमें से परिवर्तन लाने के लिए वो विरोध करेगा। यानी कि एक प्रकार की ऐसी गुणवत्ता बॉडी के अंदर है कि विच विल रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की ट्राई करेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ट्राइंग टू टेल्स अस अबाउट दिस। whenever the body is in a state of rest or in a uniform motion, it will be continued for last long if any external unbalanced force will act not on it. That's it. So this is the inherent property of any of the body, which is known as the inertia. Okay. Now let us talk about on which factors the inertia is dependent. Basically, inertia is dependent on the weight, or be specifically, if I tell you, it is dependent on the mass. Mass is a measure of inertia. मास जो है वो इनर्शिया का एक मापदंड है कि अगर किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक, और अगर किसी चीज़ का मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। अब इनर्शिया किसे कहते हैं, आइए चलिए जानते हैं। Let us talk about this paragraph. Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. कई बार जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर से ही इस लॉ ऑफ इनर्शिया को समझाया गया है। जनरली इनर्शिया के कारण न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. यानी कि हम रेस्ट पे ही रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आवर सीट जब तक ड्राइवर ने मोटर कार के ऊपर कोई ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई ना किया हो। मतलब अगर जब तक ड्राइवर्स ने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ब्रेक अप्लाई नहीं की है, तब तक हम जो है वो हमारी सीट के ऊपर रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे। बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लोज डाउन, बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ द इट्स इनर्शिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी सिचुएशन देखो कि आप कार में जा रहे हो, फास्ट कार चल रही है 90 या तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सडनली उसने ब्रेक मारी तो हम झुक के आगे चले जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? अंडरस्टैंड इट। से फॉर एग्जाम्पल ये एक शीट है, ठीक है, चम्मच बन गई ये तो, जस्ट अ सेकेंड। ये सीट है एक, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो। कंसिडर करो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जब ब्रेक अप्लाई होती है तो कार स्लो डाउन होती है, मतलब कार की स्पीड जो है वो घटती है रिटार्डेशन की वजह से। बट हमारी जो बॉडी है कि जो कार के साथ बंधी हुई नहीं है, वो आगे जाने की ट्राई करेगी क्योंकि कार जा रही थी आगे,
ब्रेक लगी उसको तो रुकेगी कार, ना कि हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक सेम स्टेट ऑफ मोशन को जारी रखने का काम करेगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। सो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो किसी भी, इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास की एक ऐसी इनहेरेंट यानी कि बाय बॉर्न ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन को रजिस्ट करेगा। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। जैसा कि यहाँ पे हुआ कि कार को अगर आपने स्लो डाउन किया लेकिन अगर बॉडी उसी दिशा में कंटिन्यू रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। सो स्टूडेंट, this is the inertia of our body, that our body will remain in a state of motion because the brakes is only applied to the brakes apply सिर्फ कहाँ पे हुई, brakes जो है वो सिर्फ apply हुई टायर्स के ऊपर, but our body will not brake by itself. So because of this, a sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front. तो इसी कारण से जो है वो ज़्यादातर जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके कारण सीट बेल्ट हमें लगाने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी ब्रेक हम सडनली लगाते हैं, ज़ोर से एक ब्रेक लगाते हैं, उसकी वजह से हमारा सिर या तो पूरा बॉडी जो है वो आगे डैशबोर्ड के साथ टकरा के हमें डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है। सो safety belts are worn to prevent such accidents. So we need to wear such kind of safety belts. Safety belt exert a force on our body to make the forward motion slower. यानी कि सेफ्टी बेल्ट्स जो है वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो आगे की दिशा में बहुत धीरे जाए। जाती तो है लेकिन बहुत धीरे जाती है, हमें रोक के रखती है। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. ये तो हुई कि जब ब्रेक लगाई जाती है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी जो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब जानकारी लेते हैं कि जब अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है, पहला एग्जांपल लिया उसमें बॉडी मोशन में थी और उसके बाद उसको रेस्ट पे लाया हमने, तो हम कंटिन्यू रहे, हमारी मोशन जो है वो कंटिन्यू रही, उसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा है कि जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट के ऊपर है, उसके बाद आप उसे चालू कर रहे हो, जैसा कि आपकी मोटर है, चलो ले लो, वो रेस्ट की पोजीशन के ऊपर आपने स्टार्ट नहीं की, लेकिन जैसे ही आप इग्निशन ऑन करके मोटर को जैसे ही स्टार्ट करते हो तो अंदर बैठे हुए लोग जो है वो पीछे की ओर एक धक्का महसूस करते हैं, पीछे की डायरेक्शन में। सपोज इफ मोटर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन यू विल फील अ बैकवर्ड फोर्स अपॉन यू। So this tend to fall backwards is because of what? This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus. यानी कि जब आप बस में जा रहे हो या तो कार में जा रहे हो तो आपकी जो बॉडी है उसका निचला भाग बस के साथ या तो कार के साथ कांटेक्ट में होने के कारण आगे मोशन करता है, लेकिन आपकी कमर से ऊपर का भाग तो रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा, तो वो पीछे धक्का लगाएगा और आपके कमर तक का भाग आगे चला जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस आवर बॉडी विल रेजिस्ट टू कम इनटू द मोशन, यानी कि रेस्ट में है तो उसमें से मोशन में आने का विरोध करेगी। एंड दिस इज known as the inertia of rest. So here the reason is already written, but the rest of our body opposes this motion because of its inertia. So inertia is of two types, inertia of motion and inertia of rest. So because of this, the another phenomenon is also there,
When a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown to one side. ये जनरली हम देखते हैं कि जब भी फास्ट स्पीड के ऊपर कार जा रही हो और सडनली टर्न लिया जाए, यानी कि टर्न जो है वो गाड़ी लेती है, तो उसकी वजह से हम एक साइड पे थ्रो हो जाते हैं. मतलब अगर हमारी गाड़ी इस डायरेक्शन में टर्न ले रही है तो हम इस साइड थ्रो हो जाते हैं. एक्चुअल में होता क्या है कि जब गाड़ी ऐसे इस वे में जाती है तो गाड़ी की जो मोशन ओरिजिनल है वो इस डायरेक्शन में है, और आपने गाड़ी को घुमा लिया लेकिन हमारा बॉडी तो किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे. तो हम इस साइड के ऊपर दूर फिक जाता है. So this can again be explained on the basis of the law of inertia. We tend to continue our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. So we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. So student, here we will trying to maintain our motion in a straight line compared to the curvature line. The fact that a body will remain at a rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. यानी कि जो ये अनबैलेंस फोर्स की एक्टिविटी है कि द बॉडी विल रिमेन एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट. तो यहाँ से हम देखते हैं, चलो. There is one activity which is shown here. Make a pile of a similar carom coins on a table as shown in figure. कैरम की जो कॉइन्स है उसको इकट्ठा करके लगाओ. Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker. If the hit is strong enough, the bottom coin moves out quickly. Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coins makes them fall vertically on the table. यानी कि एक कॉइन, एक जो कुकरी है वो यहाँ से निकल जाती है, तो उसके बाद ऊपर वाली नीचे आती है. But for this purpose you need a fast moving carom coin or a striker. It's a Activity 9.2 करते बाद में. Set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table. ये रहा पहली फिगर. उसके बाद कहा गया है कि गिव द कार्ड शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विद अ फिंगर. इफ यू डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे, allowing the can to fall vertically into the glass tumbler due to its inertia. जो कागज़ का पत्ता है उसको हमने सिर्फ धक्का दिया, लेकिन जो कॉइन को लगने वाला फोर्स है वो नहीं लगा, क्योंकि उसका इनर्शिया उसको ऐसा कह रहा था कि आप रेस्ट पे रहो, लेकिन रेस्ट पे रहने के लिए फोर्स चाहिए नहीं होता, वो उसको मालूम है. सो बिकॉज ऑफ दिस the 5 rupees coin is then pulled in the glass. Now let us talk about the inertia and the mass. So as we already know about the inertia and the mass because we will discuss it in our note section, so there is no need to discuss about the inertia and the mass. So student, that's it for today's lecture. Let us complete today's session. We will meet on next Saturday, Sunday. तब तक stay blessed, stay happy.